Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 27th lecture in the lecture series of Geomorphology. And guys, as you know that we have started a sub-lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail. So we have already talked about the first order landforms and the second order landforms. And now we are talking about the third order landforms in which we have started the topic of the fluvial landforms. We have already discussed about the basics of the fluvial landform and about the river system, as the fluvial landforms are basically the result of the action of the river. And in the previous video, we discussed about the fluvial erosional landforms, which include the I-shaped valleys, V-shaped valleys, canyons, gorges, structural benches, rapids, cataract, waterfall and the plunge pool. And in this video, we will be talking about the fluvial depositional landforms, which include the meanders, the oxbow lakes, the floodplains, natural levees, different types of deltas, and we are also going to talk about the alluvial fans and the cones. But before starting this lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What is the difference between the structural bench and the rapid? Write down the difference between the plunge pool and the porthole. Guys, the vertical corrosion is responsible for dash of the river and horizontal corrosion is responsible for dash. How V-shaped valley is derived from the I-shaped valleys? If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, in the previous video, we discussed about the fluvial erosional landforms, जो कि बन रहे थे हेड ऑफ द रिवर पर, क्योंकि वहाँ पर हमारी रिवर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी इरोजिविटी भी मैक्सिमम थी हेड ऑफ द रिवर पर. लेकिन गाइस, हमारी जो रिवर थी उसने हेड से कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठा कर लिए अपने पानी में, लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि रिवर की एनर्जी कम होती चली गई एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया जब हमारी रिवर इन सेडिमेंट्स को और ज़्यादा अपने पानी के साथ फ्लो नहीं करवा पाई एंड हमारी रिवर ने इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया एंड वहाँ पर फॉर्मेशन हो गई हमारे फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की. तो अगर हमारे फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स हेड ऑफ द रिवर पर बन रहे थे तो हमारे फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे नियर टू द माउथ ऑफ द रिवर, क्योंकि तब तक हमारी रिवर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होगी. तो गाइस, फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स की एग्जांपल्स हैं आई शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, कैनियंस, ग्योर्जेस, कैटरैक्ट्स, रैपिड्स, स्ट्रक्चरल बेंचेस, वाटरफॉल्स एंड द प्लंज पूल्स. एंड इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो गाइस, अभी जब जो ये सेडिमेंट्स थे वो डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो वहाँ पर फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जो ये सेडिमेंट्स है ये हमारी रिवर डिपॉजिट कर रही है तो इन्हें हम लोग फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बोलने वाले हैं. तो गाइस, कुछ एग्जांपल्स हैं मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, हमारे फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टास, एल्यूवियल फैंस एंड द कोन्स. तो पहले स्टार्ट करते हैं मिएंडर्स से. तो गाइस, ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे मिएंडर्स. तो गाइस, होता क्या है कि हमारी रिवर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हेड ऑफ द रिवर पर तो हमारी रिवर स्ट्रेट पाथ फॉलो कर पाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद गाइस क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अर्थ की क्रस्ट कहीं से सॉफ्ट होती है और कहीं से हार्ड, एंड आपको पता है कि रिवर इरोजन सबसे ज़्यादा किसकी कर पाएगी, सॉफ्ट सबस्ट्रेटा की, एंड हार्ड सबस्ट्रेटा की वो उतनी ज़्यादा इरोजन नहीं कर पाएगी. तो हुआ क्या कि हमारी जो रिवर थी वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए आ रही थी, लेकिन बीच में एक हार्ड सबस्ट्रेटा आ गई जिसकी वजह से हमारी रिवर उसकी इरोजन नहीं कर पाई. लेकिन उस हार्ड सबस्ट्रेटा के साथ ही हमारी सॉफ्ट सबस्ट्रेटा प्रेजेंट थी, जिसको इरोड करते हुए हमारी रिवर ने अपना रास्ता बना लिया, जिसकी वजह से हमारी रिवर का जो पाथ था वो बेसिकली जिगजैग फॉर्म में आ गया है एंड इसी को हम लोग बोलते हैं मिएंडर्स.
तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि दो पार्ट्स हैं हमारी रिवर के, एक तो है इनर बैंक एंड दूसरा है आउटर बैंक। तो अभी हमें ये देखना है कि इनर बैंक की इरोजन होती है या फिर आउटर बैंक की। एंड गाइज आपको पता होगा कि तीन तरह के सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वाटर में। एक होते हैं मटेरियल ऑफ सोल्यूशन, दूसरे होते हैं मटेरियल ऑफ सस्पेंशन एंड तीसरे होते हैं ट्रैक्शन लोड। तो गाइज जो ट्रैक्शन लोड होता है उसका तो बेसिकली साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि हमारे रॉक्स या फिर पेबल्स। तो वो तो बहुत जल्दी ही हमारे रिवर बैंक्स के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो मटेरियल ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो तो पानी के साथ मिक्सअप होकर आगे आगे फ्लो करते रहते हैं। लेकिन जो बेसिकली हमारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ऑफ सस्पेंशन। एंड अगर आपको इन मटेरियल्स के बारे में नहीं पता है तो आप बेसिक्स ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म वाली वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस होगा क्या कि जो आउटर बैंक है उसकी बहुत ज्यादा इरोजन हो जाएगी, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि वहां पर होगी डीपेस्ट रिवर। मतलब वहां पर डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर प्रेजेंट होगा, कहां पर? आउटर बैंक ऑफ द रिवर पर। अभी वहां से कुछ सेडिमेंट्स कैरी आउट होंगे एंड वो डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे इनर बैंक्स पर, जिसकी वजह से गाइज विद टाइम क्या होगा कि वहां पर हमारी स्टीप स्लोप्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड वहां पर हमारी रिवर का कोर्स परमानेंटली चेंज हो जाने वाला है फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ टू द कर्वेचर। एंड इसी को हम लोग मिएंडर्स बोलते हैं। तो गाइज हमने क्या क्या देखा कि मटेरियल ऑफ सस्पेंशन है जो मिएंडर्स की फॉर्मेशन करेंगे एंड ये बनते हैं क्योंकि हार्ड सबस्ट्रेटा एंड सॉफ्ट सबस्ट्रेटा प्रेजेंट होती है। सॉफ्ट सबस्ट्रेटा की इरोजन हो पाती है लेकिन हार्ड सबस्ट्रेटा की उतनी इरोजन नहीं हो पाती। जो हमारे आउटर बैंक्स है उनकी इरोजन होती है एंड इनर बैंक्स पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं एंड जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर प्रेजेंट होता है वो होता है आउटर बैंक ऑफ द रिवर पर। तो गाइस अभी बात करते हैं ऑक्सबो लेक्स की। तो गाइस क्या हुआ कि हमारी रिवर एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए जा रही थी, उसने मिएंडर्स की फॉर्मेशन कर दी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जिस पार्ट की हमारी रिवर ने इरोजन की उसके साथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सबस्ट्रेटा प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से गाइस क्या हुआ कि अनइंटेंशनली वो पार्ट भी हमारी अर्थ का इरोड हो गया, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि वहां पर एक अलग सा पार्ट बन जाएगा जिसको पानी सप्लाई करने वाली है हमारी मेन रिवर एंड इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सबो लेक्स। एंड गाइस जो ये ऑक्सबो लेक्स होती हैं ना ये जनरली हॉर्स शू शेप्ड होती हैं, इसीलिए हम लोग इनको हॉर्स शू लेक्स भी बोल देते हैं। तो गाइस होगा क्या कि अगर जो हमारी ऑक्सबो लेक बन गई है इसमें कॉन्टिन्यूअस पानी का जो है सोर्स कोई बन जाए तो यहाँ पर लेक की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड इस पानी को यूज करके हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं एंड यहाँ पर वेटलैंड्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो अगर एक परमानेंट सोर्स मिल जाए इस इरोडेड एरिया को तो यहाँ पर हमारे ऑक्सबो लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि बेसिकली हमारी मेन रिवर का ही पार्ट है लेकिन कुछ हटके है। मतलब कि वो कुछ अलग एरिया में जा रही है एंड उसकी डेप्थ एंड उसकी जो लेंथ है वो भी उतनी ज्यादा नहीं है कि हम इसको ट्रिब्यूटरी बोल पाए, इसीलिए हम लोग ऐसी लेक्स को बोल देते हैं ऑक्सबो लेक्स। एंड अगर यहाँ पर गाइस पानी की सप्लाई ना हो तो हम लोग फिर भी इसको ऑक्सबो लेक ही बोल देते हैं। तो गाइस ऑक्सबो लेक का यूज क्या होगा कि यहाँ पर इरिगेशन कर पाएंगे हम लोग एंड यहाँ पर हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे वेटलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जिन्हें हम लोग किडनीज ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंग्रोव्स ग्रो हो सकते हैं, कोरल्स, मार्शेस और भी बहुत कुछ ग्रो हो सकता है। तो गाइस ऐसी कुछ दिखती हैं हमारी ऑक्सबो लेक्स जो कि बेसिकली होती हैं हॉर्स शू शेप्ड। तो गाइस आपको पता होगा कि एक और चीज होती है हॉर्स शू शेप्ड कोरल्स जिन्हें हम लोग एटोल्स के नाम से जानते हैं। तो गाइज अगर आपको कोरल्स मैंग्रोव्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली लेक्चर सीरीज फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज अभी बात करते हैं फ्लड प्लेन्स एंड नेचुरल लेवीज की। तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे नेचुरल लेवीज। तो गाइज होता क्या है कि रिवर में जब पानी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है आइदर बिकॉज ऑफ द वेरी हैवी रेनफॉल, तो इसकी वजह से गाइज क्या होगा कि हमारी रिवर का वाटर बाहर की तरफ आ जाएगा जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं फ्लड। तो फ्लड कैसे आ सकता है? एक तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए वहां पर या फिर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो जाए जिसकी वजह से रिवर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वहां के आसपास वाले एरियाज में फ्लड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से गाइस क्या होगा
कि जो भी सेडिमेंट्स हमारे रिवर वाटर में प्रेजेंट होंगे वो सेडिमेंट्स निकल कर हमारे साइड के एरियाज पर आ जाएंगे एंड वो फॉर्मेशन कर देने वाले हैं वहां पर फ्लड प्लेन्स की। एंड आपको पता है कि रिवर में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ये हमारे फ्लड प्लेन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जैसे कि हमारे गंगेटिक प्लेन्स। एंड वहाँ पर हम लोग अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए ये हाईली कल्टिवेटिंग एरियाज होते हैं जो कि होते हैं हमारे फ्लड प्लेन्स। उसके बाद गाइस क्या हुआ कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते गए, तो क्या हुआ कि जो ये हमारे फ्लड प्लेन्स थे इनकी हाइट इंक्रीज हुई एंड यहाँ पर स्टीप स्लोप्स की फॉर्मेशन हो गई। तो जब यहाँ पर स्टीप स्लोप्स बन जाएंगी, जो हमारी प्लेन्स हैं इनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो हम लोग इन्हें नेचुरल लेवीज का नाम दे देते हैं। तो गाइज अभी हमने डिस्कस किया फ्लड प्लेन्स और नेचुरल लेवीज के बारे में। मतलब अगर फ्लड प्लेन्स की हाइट ज़्यादा हो गई, वहाँ पर स्टीप स्लोप्स बन गई, तो वहाँ पर हमारे ऐसे नेचुरल लेवीज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइज अभी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लैंडफॉर्म की बात करते हैं जो कि हैं डेल्टाज। तो गाइज हमें ये तो पता है कि कौन से सेडिमेंट्स की डेपोजिशन पर हमारे लैंडफॉर्म्स बनेंगे, एंड वो है हमारे मटेरियल ऑफ सस्पेंशन। तो गाइस होगा क्या कि माउथ ऑफ द रिवर पर आकर जो हमारी रिवर है वो किसी दूसरे सी या फिर ओशन में जाकर मिल जाती हैं। एंड गाइस उस पॉइंट पर अगर हमारे ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म्स बन जाए तो उन्हें हम लोग डेल्टास बोल देते हैं। क्या सिर्फ वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग लोअर क्लासेस में बेसिकली इसको ऐसे ही याद करते हैं कि माउथ ऑफ द रिवर पर ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं जिन्हें डेल्टास बोल दिया जाता है। लेकिन गाइस बहुत तरह के डेल्टास होते हैं, टूथ शेप्ड होते हैं, बर्ड क्लो शेप्ड होते हैं, एस्चुराइन डेल्टास होते हैं, जिसके बारे में हम लोग फर्दर स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। तो गाइस ये बनेंगे अगर जो हमारे टाइडल करंट्स हैं, अभी आपको पता है कि सीज एंड ओशंस में टाइडल करंट्स ओशनिक करंट्स होते हैं, तो बेसिकली हमारे डेल्टास नहीं बन पाएंगे अगर वहां पर राइट एंगल टाइडल करंट्स हैं। मतलब बेसिकली वहां पर जो टाइडल करंट्स हैं उनका एंगल कम होना चाहिए अगर वहां पर डेल्टास की फॉर्मेशन हमें करनी है। तो गाइस हुआ क्या कि रिवर की धीरे धीरे एनर्जी कम होती गई एंड माउथ ऑफ द रिवर पर आकर तो उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, जिसके वजह से जितने भी उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल से मटेरियल से उनकी कलेक्शन होनी शुरू हो गई एंड वहां पर एक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने बोल दिया है डेल्टास। गाइस एक और तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं जिन्हें एल्यूवियल कोन्स एंड फैंस बोला जाता है, वो भी बेसिकली माउथ ऑफ द रिवर पर ही बनते हैं, लेकिन वो किसी और तरह से बनते हैं एंड उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे डेल्टास। एंड गाइस आपको पता होगा कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। तो गाइस अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हमारे डेल्टास के बारे में, कि जो हमारे डेल्टास है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगुलर शेप के हों, लेकिन हाँ एक बात ज़रूरी है कि ये हमारे माउथ ऑफ द रिवर पर ही बनते हैं। तो गाइज आपने दो टर्म्स सुनी होंगी, एक होती हैं ट्रिब्यूटरीज एंड दूसरी होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो गाइज ऐसी कुछ सब रिवर्स जो हमारी रिवर को पानी सप्लाई करें उन्हें हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जो कि बेसिकली हमारी विड्थ ऑफ द रिवर को इंक्रीज कर देती है एट द मिडल ऑफ द कोर्स। क्योंकि होगा क्या कि बहुत सारी रिवर्स हमारी मेन रिवर में आकर मिल जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी रिवर की विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब रिवर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इनको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि हमारी मेन रिवर बहुत सारी रिवर्स को पानी सप्लाई करे, एंड ये बेसिकली होता है माउथ ऑफ द रिवर पर, जब सेंटर में हमारा डेल्टा बन जाता है एंड उसके आसपास हमारी कुछ सब रिवर्स की फॉर्मेशन हो जाती है जिन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देते हैं, एंड ये एक हमें फैन लाइक स्ट्रक्चर भी देती हैं। तो हुआ क्या कि अगर बहुत सारी सब रिवर्स ने हमारी मेन रिवर को पानी सप्लाई किया तो उसे हमने बोल दिया ट्रिब्यूटरीज। लेकिन अगर हमारी मेन रिवर बहुत सारी रिवर्स को पानी सप्लाई करती है तो जो सब रिवर्स हैं उन्हें हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द डेल्टास। तो गाइस पहले तो हमने बात की है कि जो हमारे टाइडल करंट्स हैं वो बेसिकली राइट एंगल्ड नहीं होने चाहिए, एंड ऑल्सो अगर जो टाइडल करंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो होगा क्या कि जो ये सेडिमेंट्स हैं ये डिपॉजिट हो ही नहीं पाएंगे एंड यहाँ पर डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ टाइडल करंट्स है वो भी कम होनी चाहिए एंड वो राइट एंगल पर नहीं आने चाहिए।
उसके बाद है गाइस डेप्थ ऑफ द रिवर। जितना ज़्यादा रिवर में पानी प्रेजेंट होगा उतने ही ज़्यादा सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे एंड उतने ही लार्ज साइज्ड डेल्टाज वहाँ पर बनने वाले हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ इरोजन की। अगर हमारी रिवर की एनर्जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवर बहुत ही ज़्यादा थी तो उसने बहुत इरोजन की होगी, उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे एंड जितने ज़्यादा सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उतना ही बड़ा हमारा डेल्टा बनने वाला है। उसके बाद है नेचर ऑफ सेडिमेंट्स। हमें पता है कि जो मटेरियल ऑफ सोल्यूशन है एंड ट्रैक्शन लोड है ये तो बेसिकली डेल्टास की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब जितने ज़्यादा हमारी रिवर में मटेरियल ऑफ सस्पेंशन प्रेजेंट होंगे उतना ही बड़ा हमारा डेल्टा बनने वाला है। तो गाइज अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ द डेल्टास की, क्योंकि अभी हमें ये तो पता चल चुका है कि डेल्टा सिर्फ ट्रायंगुलर शेप का नहीं होता। तो पहले बात करते हैं बर्ड क्लो शेप्ड डेल्टा। मतलब ये बर्ड के क्लॉ मतलब फीट की शेप का डेल्टा होता है एंड ये प्रेजेंट है हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंड इन द एरिया ऑफ मिसिसिपी। तो गाइज ये बेसिकली है क्या कि ये बेसिकली हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं डेल्टास को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। मतलब अगर हमारे डेल्टा की शेप बर्ड क्लो शेप्ड है तो हम लोग उसे बर्ड क्लो शेप्ड डेल्टा बोल देंगे एंड ये प्रेजेंट है मिसिसिपी के एरिया में इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद गाइज है हमारे दूसरी तरह के डेल्टास जिन्हें हम लोग बोलते हैं फैन शेप्ड डेल्टास। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज की फॉर्मेशन होती है। मतलब सेंटर में मान लो हमारा एक ट्रायंगुलर शेप डेल्टा बन गया, अभी वहां से हमारी रिवर फ्लो नहीं कर पाएगी तो आसपास इरोजन होने के कारण वहां पर सब रिवर की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि हमें एक फैन लाइक स्ट्रक्चर दे देंगी, क्योंकि सेंटर में एक फिक्स्ड पाथ होगा एंड साइड्स पर क्या होगी हमारी रिवर्स फ्लो कर रही होंगी। तो ऐसे डेल्टास को हम लोग फैन शेप्ड डेल्टास बोल देते हैं, जो कि बेसिकली बनेगा माउथ ऑफ द रिवर पर एंड इस पॉइंट पे एक तो हमारी मेन रिवर होगी एंड कुछ हमारी सब रिवर्स भी प्रेजेंट होंगी जिन्हें हम लोग बोलने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द नाइल। गाइज उसके बाद बात करते हैं एस्चुराइन डेल्टास की। गाइज एस्चुरी का मतलब होता है जब जो हमारा माउथ ऑफ द रिवर है दैट इज सबमर्ज्ड इन द सीज एंड द ओशियन, जिसकी वजह से गाइज क्या होगा कि वहां पर जो भी डेल्टा बनेगा वो हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर होगा एंड हाफ अबव द वाटर होगा। मतलब ना तो वहां पर प्रॉपर एस्चुरी बन रही है एंड ना ही वहां पर प्रॉपर डेल्टा बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एस्चुराइन डेल्टा का नाम दे देते हैं। एंड ऐसा ही एक डेल्टा बनाती है हमारी अमेज़न रिवर दैट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज अगर आपको एस्चुरीज के बारे में नहीं पता है तो आप अगेन मेरी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। उसके बाद गाइज बात करते हैं कि अगर जो हमारा डेल्टा है वो बेसिकली टूथ शेप्ड है, मतलब हमारे दांत की शेप का है, तो हम लोग उसे बोलते हैं क्यूस्पेट डेल्टा या फिर आप इसको कस्पेट डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो गाइस हमने देखा कि बर्ड क्लो शेप्ड डेल्टा होता है, एस्चुराइन डेल्टा होता है, फैन शेप्ड डेल्टा होता है एंड उसके बाद होता है हमारा टूथ शेप्ड डेल्टा जो कि है गाइस बेसिकली स्पेन में प्रेजेंट, जो कि फॉर्म करती है हमारी एब्रो रिवर। उसके बाद गाइस बात करते हैं एलुवियल फैंस एंड द कोन्स की। तो गाइस ये बहुत ही सिमिलर होते हैं हमारे डेल्टा से, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे डेल्टास हैं वो बेसिकली बनते हैं माउथ ऑफ द रिवर पर, लेकिन हमारे एलुवियल फैंस एंड द कोन्स की फॉर्मेशन तब होती है जब हमारी एक रिवर हाइट से गिरती है एंड वहां पर सेडिमेंट्स की कलेक्शन होना शुरू होती है एंड वहां पर कोई लैंडफॉर्म फॉर्म होता है तो उसे एलुवियल लैंडफॉर्म का नाम दे दिया जाता है। तो अगर हमारा लैंडफॉर्म माउथ ऑफ द रिवर पर बन रहा था तो उसे हमने डेल्टा बोला, लेकिन अगर हमारा लैंडफॉर्म इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारी रिवर किसी हाई लैंड से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसे हम लोग एलुवियल लैंडफॉर्म का नाम दे देते हैं। तो अगर वहां पर फैन शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब वहां पर भी एक बीच में कोई एलुवियल लैंडफॉर्म बन गया एंड उसके आसपास हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं तो हम लोग उसे एलुवियल फैन बोल देंगे। एंड अगर वहां पर एक कोन शेप मतलब ट्रायंगुलर शेप कुछ स्ट्रक्चर है तो उसे एलुवियल कोन का नाम दे दिया जाता है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूवियल डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करने वाले हैं आयोलियन लैंडफॉर्म्स की। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू एंजॉयड माय वीडियोस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।